राज्य में अपने लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राज्य को उस पुराने गौरवान्वित समय की तरफ ले जाएं। एंड आज का जो प्रोग्राम है ये डेफिनेटली एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में, जिससे कि यहाँ का यूथ जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि बिहार को बहुत आगे ले जाए, ये यहाँ पर इस तरह की कोशिशों के द्वारा हम उस तरह का काम कर सकते हैं। As Vandana Kinji said, that there has been big changes in the industry. There is a lot of disruption taking place, and especially in the manufacturing industry and in the automotive industry, the changes of technology have become so disruptive that there is a need for us to really look at our education, training, to align them with the industry requirement. And it is important because unless we do that, our youth cannot be empowered to find good career and future in the state. And so this particular effort is going to provide significant step forward by bringing in the new technologies, like it was listed out some time back, Industry 4.0. We talk of automotive vehicles with renewable energy. Then we talk about advanced manufacturing, 3D printing. Then talk about product development with new technology. There are so many technologies which are there, and it is important that our youth is skilled with that, so that they are able to have no gap with the industry and are able to get the future and employment. Now, with these changes happening, today's program is going to provide complete support to the ITIs by providing them with the COE, which will have all the latest technology. And with these, I am sure IITs will be able to provide the training which will be directly relevant to the manufacturing industry in the present time. It will significantly reduce the skill gap in the industry and arm our youth with industry relevant training, helping them in career development in employability. With our experience of working globally in battery EV design, manufacturing process design and deployment, we are sure to bring the right industry knowledge to do this upgrade. Our experience in Karnataka state on a similar project also gives us immense confidence that we will be able to not only deliver our promise but also exceed to ensure that we are delivering the right thing. In the end, I want Honorable Chief Minister Nitish Kumar ji for his vision for skilling the youth of the state with relevant technology and provide them with career and future. We are very happy to be part of his vision of Saath Nishchay, in which the first one is empowering the youth of the state, and we will be contributing to that in a small way. We thank him, Honorable Minister of Labour, Shri Jibesh Kumar ji, and Vandana Kinji ji, and everyone here for the trust and sponsorship to Tata Technology for this important mission. My thank you to the staff of BET for their passion and dedication to reach this milestone. With our partner, we commit our support to this mission to make it very successful. We are proud to be part of this nation-building effort. Thank you, everybody. Thank you, sir, for very kind words. आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश की अग्रगणी संस्था टाटा टेक्नोलॉजी के साथ आज बिहार के श्रम संसाधन विभाग के अंदर कार्यरत जो ITI है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में सभी 149 सरकारी ITI को जिस प्रकार से टाटा टेक ने अपना सानिध्य दिया है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए, और अपने इतने सारे अलायंस पार्टनर के साथ मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की ओर से
आप सभी साथीगण का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं और आप सभी को आगे पूरी तरह से बिहार सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलेगा इसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर मुख्य रूप से आज यहाँ हम बड़े गौरवान्वित हैं कि आज टाटा टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वारेन हैरिस जी हम लोगों से सीधा जुड़े और हम लोगों को एड्रेस भी उन्होंने किया। मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ दोनों हैं। हम लोग आनंद अनुभूति कर रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम को सीधा श्रीमान पवन बाघेरिया जी प्रेसिडेंट टाटा टेक्नोलॉजी के हैं और स्वयं आकर के आज इस समझौते पत्र पर सिग्नेचर करते हुए इस जो लगातार 1 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे थे कि बिहार के अंदर इंडस्ट्री 4 को नए तरीके से प्रस्तुत किया जाए, आईटीआई को नया आईटीआई बनाया जाए, देश के अंदर इंडस्ट्री 4 पर कार्य करने वाले बिजनेसमैन को हम कुशल मानव बल दे सके, इस दिशा में आप सभी साथी जो चलकर यहाँ आए हैं। मैं पुनः एक बार मैया सीता की धरती पर, ये बुद्ध की धरती पर, भगवान महावीर की धरती पर, गुरु नानक देव की धरती पर आप सभी का गंगा की गोद में तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि बिहार किस प्रकार आगे बढ़े, बिहार कैसे आगे बढ़े। मुझे फक्र है इस बात को कहते हुए कि देश के अंदर सबसे इंटेलिजेंट मानव बल अगर कोई देता है तो वो बिहार राज्य है और आपकी नजर यहाँ पड़ी, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो इंडस्ट्री 4 का ट्रेनिंग आप देने वाले हैं, सभी साथीगण, विद्वान साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी महोदया ने सभी लोगों का नाम लिया। मैं आप सभी को अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से पुनः एक बार साधुवाद देता हूँ। हमारे अधिकारी श्रीमती वंदना किनी जी जो एसीएस हैं विभाग की, विजय प्रकाश मीना जी, हमारे सेक्रेटरी श्रीमान संदीप जी, और जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम में लगे हुए थे लगातार कैसे यह फ्लोर पर आवे, तो टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान सुशील जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे अधिकारी श्रीमान आलोक कुमार जी आईएफएस, दोनों मिलकर के लगातार 9 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और आप दोनों की पेशेंस को भी मैं साधुवाद देता हूं कि आप लगातार बिना उबे हुए, कई बार तो मैं मानता हूं कि सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ जब कोई काम करनी चाहती है तो उसमें कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। मैं क्षमा चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद भी कुछ अतिरिक्त समय मुझे लगा, क्योंकि मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी से जगह पर आना चाहता था कि पूरे देश के अंदर इस एक वातावरण बने, एक प्रकार का जो शुद्धता और शुचिता के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। मुझे खुशी है कि थोड़ा देर हुआ, लेकिन हम लोग इस सारे पैरामीटर्स को पूरा करते हुए, श्रीमान पुष्पराज जी हैं लगातार हम लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, आप सभी साथीगण, श्रीमान दीपक जी, विनीत सेठ जी, इधर राजेश जी, जयदी जी, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। क्षमा चाहता हूँ अगर किसी का नाम छूट रहा हो, क्योंकि बार बार जब हम लोग अब मिलेंगे, उम्मीद करते हैं कि कभी कभी मिलना जुलना होगा, तो मुझे तो आपसे और भी काम उतारना है बिहार की धरती पर। तो आप हमारे लिए हमेशा वंदनीय हैं, सम्माननीय हैं और बिहार को किस प्रकार हम आगे बढ़ावें, इंडस्ट्री 4 के अंदर जिन जिन तकनीक्स के ऊपर काम करेगी टाटा टेक्नोलॉजी, मुझे पूरा यकीन है कि देश ही नहीं दुनिया के अंदर हम एक सक्षम मानव बल देने में आने वाले दिनों में तकनीक से भरपूर मानव बल देने में सक्षम होंगे। जिस प्रकार आप यहाँ ड्रोन, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जिस प्रकार 3D को लिया है, आप जिस प्रकार से रोबोटिक पर फोकस कर रहे हैं, अब समय उसके अंदर ड्रोन का भी है। मुझे अभी मालूम चला कि ड्रोन का सॉफ्टवेयर पर कुछ अंश इसके अंदर डाला गया है, लेकिन ड्रोन मेरी अपेक्षा होगी, अगर हमारी बात मिस्टर वारेन हैरिस जी भी सुन रहे होंगे, सीईओ एमडी और प्रेसिडेंट यहाँ हैं, तो ड्रोन तकनीक का अभी काफी बोलबाला होने वाला आने वाले दिनों में। 3D तो है, ये अपना रोबोटिक तो आज के दिन में डिमांड है और रोबोटिक के निपुण स्किल ना तो मैकेनिक मिल रहे हैं, ना उसको चलाने वाले अभी लोग मिल रहे हैं, और आने वाले दिनों में पूरी की पूरी तकनीक 3D में डाइवर्ट होने वाली है।
तो आपकी नजर यहाँ पड़ी और हम इस अनुरूप आपको मानव बल देने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो एग्रीमेंट किया है उसमें लिखा है कि 2 प्रशिक्षित आप ट्रेनर भी देंगे सभी जगह। 149 ITI के अंदर कुल 298 ट्रेनर भी आप उपलब्ध कराएंगे। हमारा आग्रह होगा कि ड्रोन तकनीक को भी आप विशेष रूप से फोकस करें, क्योंकि आने वाला समय उसका है। आप सभी लोग यहाँ आए, इतनी दूर आए, हम आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। मिस्टर वारेन हैरिस जी का भी धन्यवाद देते हैं कि वो लगातार हम लोगों से जुड़े हुए हैं। वहां से आप अपने मुख्यमंत्री जी, अपने उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके लीडरशिप में आज बिहार संभवतः देश का दूसरा राज्य है जिन्होंने इस काम को किया है। इस प्रकार का समझौता इंडस्ट्री 4 के लिए जो मानव बल ट्रेंड तकनीकी रूप से योग्य सुयोग्य लोगों को खड़ा करने का काम करेगा, ये बिहार दूसरा राज्य है। हम अपेक्षा रखते हैं श्रीमान पवन बघेरिया जी से, क्योंकि मैं आपको सुन रहा था कि आपने कहा कि मैं रांची से पढ़ाई किया हूं और पूरी तरीके से इसको जानता हूं, तो हम समझते हैं कि आप मुझे जान रहे हैं, इस प्रदेश को जान रहे हैं, तो आपका पूरा सानिध्य इस प्रदेश को मिलेगा। और किस प्रकार अन्य लेटेस्ट तकनीक से हम बिहार को संभालेंगे, नवाजेंगे, इस दिशा में भी आपके सकारात्मक कदम आगे आने वाले दिनों में उठने चाहिए। सभी उपस्थित मान्यवर CEO से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह भी है कि इसके अतिरिक्त भी बिहार के हित में आप अगर कोई कदम चलेंगे, उठाएंगे, तो हम बिहार की धरती पर आपका तहे दिल से आने वाले दिनों में स्वागत करेंगे। आप सभी का पुनः एक बार मैं अपनी ओर से, अपने सभी अधिकारियों की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार की ओर से पुनः एक बार आपका अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत सादर धन्यवाद आप सभी।